سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد انصاف پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کشمیری خواتین کی بے حرمتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جبر کو اجاگر کرنے میں انسانی تنظیموں کا کردار اہم ہے۔ ثقافت کشمیریوں پر مظالم کو اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سفارتکاری میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کشمیریوں کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے۔ ڈپلومیسی اتنی وہ پرانے طور طریقوں پہ چلے گی کہ جی ایک ایمبیسڈر نے جا کے بات کر دی ایک فورم پہ وہ ہو گیا قصہ ختم، اس طرح نہیں چلے گا۔ کشمیریز آر ڈائنگ ایوری ڈے اور ہم اپنی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں جتنا پرائم منسٹر عمران خان نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹس کیے ہیں، اور جتنا انہوں نے پورا نیریٹو بدلا ہے سنگل ہینڈڈلی، اگر ہمارا فارن آفس اور جو باقی ادارے کشمیر کی پالیسی بنا رہے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے، دنیا نوٹس لے چکی ہوتی۔ میں آئی اسٹل مینٹین چاہے جو بھی گلوبل پالیٹکس ہو، لیکن آپ تو کچھ ہلیں۔ ہم تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ جو یو این کشمیر کی رپورٹس ہیں ان پہ انویسٹیگیشن کمیشن بنائی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی۔ جبکہ پشاور میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ معاہدہ فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمزور مسلمان ممالک کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای کا فیصلہ امت مسلمہ یا عرب دنیا کا فیصلہ نہیں ہے۔ اے پی سی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اے پی سی بلانے سے متعلق کوئی اختلاف نہیں، قوم کے سامنے واضح پلان رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن کو لاہ عمل دینے کی ضرورت ہے، ہم کسی مایوسی کا شکار نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم اس کو ناجائز کہیں، جعلی ووٹ اور جعلی مینڈیٹ کے حامل کہیں، پھر نئے الیکشن کا ہم پرزور مطالبہ بھی کریں، اور پھر جب بھی اس گورنمنٹ کو کسی مسئلے پہ ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری بڑی پارٹیاں جب ان کو ان حالات میں ووٹ دیتی ہیں تو ہماری نظر میں وہ ذرا صورتحال سے متصادم ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی ہمارا ان سے یہی تقاضا ہے کہ یہ روش اگر ترک کر دی جائے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم حزب اختلاف کریں اور اختلاف رائے کریں، تحریک چلائیں، تو یکسوئی کے ساتھ ہی ہم قوم کا اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہائبرڈ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں قائم علی شاہ، نوید قمر، رضا ربانی، مراد علی شاہ، شہری رحمان شریک ہوئی ہیں، جبکہ اجلاس میں لطیف کھوسہ، رحمان ملک سمیت دیگر سینئر رہنما بھی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک نے کہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، صوبے کو چھیڑا گیا تو وفاقی حکومت بھی بچ نہیں سکتی۔ کراچی میں بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سیاست کو جنگ کا میدان نہ بنائے، لڑیں گے تو وہ بھی تیار ہیں۔ یہ بھی کہا کہ یہ سندھ حکومت کی بہتر کارکردگی سے قائف ہیں، پورے ملک میں اس وقت سندھ حکومت ہی بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں اگر صوبہ سندھ کو چھیڑا اور اس حکومت کو کچھ بھی نقصان دینے کی کوشش کی گئی، چند دنوں کے بعد فیڈرل گورنمنٹ بھی گھر چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہر چیز کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیں، یہ بہتر ہوگا۔ اور میں یہ بڑی ٹھیک ٹھاک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ جس دن فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو چھوڑا اس کے چند دنوں کے بعد یہ گھر چلی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سعودی عرب آزمودہ اور دل کے قریب دوست ہے، چین سے غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف جہاں ہیں وہ مریم کی وجہ سے ہیں، حکومت اور فوج ایک پٹری پر ہیں، آرمی چیف کل سعودی عرب جا رہے ہیں، مزید اچھی خبریں آئیں گی۔ لاہور سے احمد فراز کی رپورٹ۔
वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की रेलवे हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ हैं। जब तक वज़ीर आज़म साथ हैं कोई उस्मान बुज़दार का बाल भी बीका नहीं कर सकता। हुकूमत और फौज एक पटरी पर हैं। आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब से मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। सऊदी अरब हमारा आज़मूदा और तारीख़ी और हकीकी और दिल के करीब दोस्त है, और इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब में पहले ही तल्लकात जो हैं थोड़ी बहुत अगर जो गलतफहमियाँ थी दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज़ DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फ़र्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा और अच्छी खबरें आएंगी सऊदी अरब से। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों से इस्तीफे चाहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी वाले इतने भोले नहीं कि सिंध हुकूमत छोड़ दें। मरियम नवाज खुद तो नाअहल हो चुकी, अब वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ अभी तक क्यों बचे हुए हैं। मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है अभी तक। आज नवाज शरीफ जहां है वो मरियम की वजह से है। वजीर रेलवे ने बताया कि 17 अगस्त से मजीद 10 ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। ML1 का क्रेडिट वजीर आजम और आर्मी चीफ को जाता है। चीन का ताउन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ML1 के इफ्तिताह में चीन की बड़ी शख्सियात आएंगी। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 22 करोड़ लोगों के पीछे वर्दी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाज चौहान का कहना था कि अगर आपके पीछे वर्दी ना हो तो कुलभूषण जैसे कैरेक्टर जो हर जगह मौजूद हैं हमें जीने ना दें। जब आपने वर्दी वाली तकरीर की है इसमें ये कि मुखालिफिन कह रहे हैं कि आपके पीछे भी वर्दी है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पीछे वर्दी है, आपके पीछे भी वर्दी है जो आप खड़े हैं ना, आपके पीछे सवाल पूछ आपके पीछे वर्दी ना हो तो कुलभूषण सिंह यादव की तरह के जो करैक्टर और एक्टर और एलिमेंट है ना, वो सिर्फ दहशतगर्दी की सूरत में नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासत से लेके मीडिया से लेके हर शोबे जिंदगी के अंदर मौजूद है। वो आपको जीने ना दें तो हम सारों के पीछे वर्दी है। अच्छा, जो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज कठपुतली और रेलू कट्टों के एहसाब पर सवार हो चुकी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज जाली एहतसाब के सामने सीना तान कर खड़े हैं। 2021 हुकूमत के खात्मे का साल होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में अज़मा बुखारी ने इस्तफसार किया कि कहाँ हैं वो गाड़ियाँ जिन पर पत्थर लाए गए। मुस्लिम लीग नून जाली वीडियो से ब्लैकमेल नहीं होगी। कारकुनों पर पथराव का मंसूबा फयाजुल हसन चौहान जैसे लोगों का ही हो सकता है। फयाजुल हसन चौहान जैसा शख्स ही 1 किलोमीटर दूर से पत्थर फेंक कर नैब ऑफिस के शीशे तोड़ सकता है। उनका कहना था कि शरीफ खानदान को कमज़ोर और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के नैब न्याजी हरबे नाकाम हो गए। 6 माह की मेहमान हुकूमत के हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर्स और RPOs को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि SOPs पर मुनासिब अमल ना हुआ तो कोरोना फैल सकता है। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में सुस्ती से काम लिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि समाजी फासले और मास्क पहनने को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 82 मजीद केसेस की तस्दीक हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। DG ISPR के मुताबिक कोरोना से निमटने की हिकमत अमली और इंसदादे पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू हुई है। कोरोना के दौरान पोलियो मुहिम मौसर अंदाज में चलाने के लिए महफूज आगाज़ और कोशिशों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। बिल गेट्स ने वसाइल की कमी के बावजूद कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा है। बिल गेट्स ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। बिल गेट्स का ये भी कहना था कि पाक फौज की इंसदादे पोलियो मुहिम में कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज ने हर जगह इंसदादे पोलियो मुहिम की रसाई यकीनी बनाई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना कौमी मकसद है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदादे पोलियो की कोशिशों में रज़ाकारों, सिक्योरिटी एहलकारों, हेल्थ वर्कर्स का किरदार अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि NCOC के जरिए दस्तयाब वसाइल का सही इस्तेमाल किया।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकल गए। बाज़ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए MD लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सरजनिश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग, किनार रोड, सर्कल रोड, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और दीगर इलाकों में निकल गए। MD LWMC की कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म दिया और हदायत की कि MD अपनी निगरानी में कूड़ा क्रिकेट उठवाकर रिपोर्ट पेश करे। आइंदा सफाई के हवाले से शिकायत आईं तो गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने एक बयान में सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए इज्तिमाई काविशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुतल्लिका महकमों और अदारों को बाहमी राब्तों को मजबूत बनाकर रिजल्ट देना होंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में गफलत या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम सियाह के हवाले से बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय यौम आज़ादी पर सरापा एहतिजाज हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों के साथ है। दुनिया में सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत ने मकबूजा कश्मीर में जमहूरी इक़्तिदार का खून किया। कश्मीरी अवाम के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। कराची के इलाके बफर जोन में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। हालिया बारिश से जमा होने वाला पानी भी इलाके में अब तक जमा है। मजीद बता रहे हैं काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कराची की मुख्तलिफ अहम सड़कों का अहवाल तो हम आपको बारिश के बाद से बता रहे हैं, लेकिन हमने कुछ इलाकों का भी दौरा किया है और हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बारिश से मुतासिर हुई हैं और टूट फूट का शिकार हैं। हम इस वक्त बफर जोन के इलाके में मौजूद है और यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद। अगर आपको इस सड़क की सूरत-ए-हाल दिखाएं तो ये बफर जोन की मेन सड़क है और ये भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। बारिश का पानी यहाँ कई फीट जमा हुआ था। हमने यहाँ इलाका मकीनों से बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कोई इंतजामिया नहीं आई है। बारिश का पानी तो अब कम हो चुका है, लेकिन ये सड़क पूरी जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ से लेके गुजर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और जो यहाँ घर मौजूद हैं उन तमाम तर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर इंतजामिया का कोई शख्स नहीं आया है, इंतजामिया की जानिब से कोई मशीनरी नहीं लगाई गई है। मुख्तलिफ गलियों के अंदर इसी तरह कचरा भी मौजूद है और साथ साथ जो है वो सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। जी, कोरोना वायरस के बायस इल्तवा की शिकार खेलों की सरगर्मियां बहाल होने पर लड़के और लड़कियां खुश हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल इमरान। खेलों के मैदान एक बार फिर से आबाद हो गए। कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी के बाद हुकूमत ने SOPs के तहत खेलों की सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही लड़कों और लड़कियों ने खेलों के मैदानों का रुख कर लिया। बहुत ज़्यादा खुशी है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हमें अपनी जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, जाहिर है उसको जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको ख्याल में रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें करनी है। खुशी की तो इंतहा नहीं है कि 5 महीने बाद जो है ना वो लॉकडाउन ओपन हुआ है और हमें फैसिलिटी मिली है खेलने की। मुश्किलात आ रही हैं लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है ये कवर हो जाएंगी। कौमी खेल हॉकी से वाबस्ता खिलाड़ियों का कहना है कि हॉकी की सरगर्मियां पहले ही कम थीं। कोविड-19 के बायस इस खेल को मजीद नुकसान पहुंचा। मैदान में आना अच्छा लग रहा है। 5 माह बाद हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ किया है स्टेडियम में, बहुत खुशी की बात है। और ये है कि मुश्किलात तो होंगी क्योंकि हमने एज अ टीम प्रैक्टिस नहीं की। खेलने में थोड़ी तो मुश्किल हो रही है, बॉल नहीं कंट्रोल हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात सही होती जाएंगी। खिलाड़ियों का कहना है कि 5 माह घरों में रहने के दौरान फिटनेस पर तो काम किया, ताहम खेल से दूर रहे। अब ग्राउंड्स में स्किल्स पर तवज्जो देंगे और चंद हफ्तों में पहले वाले रिदम में आ जाएंगे। सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी इकोनॉमी जितनी भी है तो उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी आपको पता है कि पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका किसी भी इंडस्ट्री को चलाने का। घरेलू लेवल पे भी यही मसला रहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस सिलसिले में काफ़ी उनकी कंसर्न थी कि इस मसले को हमने जल्द अज जल्द हल करना है। उस सिलसिले में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट किया गया और पूरी तवज्जो दी गई। तो फाइनली एक टीम तश्कील दी गई जिसका कि मकसद था कि IPPs के साथ मिलकर, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हों तो आप कोई भी हुकूमत को उसमें सॉवरेन गारंटीज़ भी शामिल होती हैं, तो आप उसको यकतरफ़ा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं।
تو اس لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا پروگرام یا ایک ایسی ارینجمنٹ کی جائے جس سے کہ ملک بھی سستی بجلی کے حصول کو پاسبل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے واجبات ہیں ان میں بھی کوئی تعطل نہ آئے۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کو طے کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کی جائے۔ گو کہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج ایک فیصلہ ہوا اور کل سے جو ہے تو بجلی سستی ہو جائے گی۔ یہ اس جانب ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس سے کہ جو الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کرنا۔ تو اس سلسلے میں شہزاد قاسم صاحب جو کہ انرجی سیکٹر سے بہت عرصے سے منسلک رہے ہیں، بہت ان کا اپنے انڈسٹری میں ان کا نام ہے، اور انہوں نے جو ہمارے یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور ایک بنیادی سا ایک ایگریمنٹ سا ان کے ساتھ ہوا ہے، جس کی کہ ظاہر ہے کہ ہم ایگزیکٹ فیکٹ فگرز آپ کو اس وقت نہیں دے سکتے، لیکن اس کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اس ایگریمنٹ کا یا ان نکات کا جن پہ کہ پیش رفت ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو شہزاد قاسم صاحب تفصیلات بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے جو بھی پوچھنا ہے اس کے حاضر ہوں گے۔ جی شہزاد قاسم صاحب۔ تھینک یو شبلی بھائی۔ تو جی جیسے شبلی صاحب نے بتایا، اس کا ایکسرسائز کے اس کے لیے ایکچولی ایک الگ کمیشن بنا ہوا ہے جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے۔ ہمارے منسٹری کے کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ان کو اسسٹ کر رہے تھے، مگر کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الگ ہے۔ ہم ایز دی ایگزیکٹو برانچ اس میں اس سے الگ رہے ہیں تاکہ ایک بالکل کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کی جا سکے اور اس کی بیسس کے اوپر نیگوسیشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اس کمیشن نے بیسکلی یہ ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں پرسوں۔ تو یہ بڑی اوبیسلی جیسے شبلی بھائی نے بتایا کہ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ نیگوسیشن ہو جائے اور سوورن اگریمنٹس جو ہیں نا وہ ڈسٹرب نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ایک دو بڑے انسیڈنٹس اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ اور ریکودیک میں بھی سوورن گارنٹیز تھیں اور وہ ہم نے اس کو احتیاط سے ہینڈل نہیں کیا، تو بہت بڑا ہمارے اوپر انٹرنیشنل آربیٹریشن کی وجہ سے کافی پینلٹیز کی ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں میرے دوسرے ادارے میں جو منرلز اور مائننگ کے اندر، بٹ دیٹس اے سپریٹ اسٹوری۔ ابھی ہم اس کے اوپر جو یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہو گیا جس میں میجر چیزوں کے اوپر اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ جو بہت ہی اچھے کیا کہتے ہیں خوش اسلوبی اور ایک اچھی